slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मैं कोशिश करूंगा वो रैप मेरा निकल जाए। ओ भाई कैसे ये आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैं पेट उठा के क्या क्यों आ रहा हूँ। ये मेरा पहला सेट पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेट की ओर। तीसरी एक्सरसाइज है, सर एक एक करके दोनों एक साथ।
जितना मैं कर सकूँ। जबरदस्ती का कोई वेट नहीं उठाना। एक साथ सेम पोजीशन में। Pulling down the black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Put the gun down. Got the bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. ये थोड़ा टफ था मेरे लिए। पहले वाला सेट तो इजीली लग चुका था, बट वो दूसरा सेट जो था एक साथ उठाने वाला, ये मेरे लिए थोड़ा टफ रहा है। 5-6 रैप इजीली निकल गए थे, बट उसके बाद मुझे अपने बॉडी की पूरी इफेक्ट डालनी पड़ी है, पूरी कोशिश करनी पड़ी है, तो मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, वरना मैं कर नहीं पाता। चल के वेट बढ़ाएंगे और अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे। Pulling down black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling down black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in मुझे the पता है place till सर, the मैं sun's out. उस वेट पे सही मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने पिछले वेट की तरफ चल रहा हूँ। जब भी गाइस आपको लगे कि आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने जिद पे अड़ के सेम वेट ना मारें, आप उन वेटों से यूज करें जिससे आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ। गाइस अब हम चल रहे हैं दूसरे एक्सरसाइज की ओर, व्हील चेयर की ओर। तो सर थोड़ा ध्यान दो हमारे ऊपर भी, एक्सरसाइज के सेट बताओ सही से। कोशिश करें कंट्रोल ऑफ ब्रेथ करें। जिस भी आप पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश करें उसके साथ अपना माइंड कनेक्शन बनाएं। आप जिस भी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, परफॉर्म करते समय आप उसे महसूस करने की कोशिश करें। जैसे अब मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड कनेक्शन मेरे बाइसेप्स के पिक पे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्शन बना रहे। तो मैं इसे कॉम्बो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। कोशिश है मेरी आराम से करूं, पर आराम से करते करते मैं सो ना जाऊं। भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जिसकी बॉडी बन जाती है ना वो ऐसे ही बोलता है। दोस्तों ये था हमारा पहला सेट। अब हम दूसरे सेट की तरफ चलेंगे। ये हमारे कुछ लफंडर दोस्त हैं जो एक्सरसाइज कम और बीबीसी ज़्यादा करते हैं। आप पास आइए, हम आपको मिलवाना चाहते हैं अपने नए दोस्तों से। दोस्तों देखो, दूर से ये उंगली कर रहा है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका एंजॉयमेंट भी होते रहना चाहिए। अब हम अपने दूसरे शॉट मारने जाएंगे, तो हम कुछ वेट बढ़ा लेते हैं।
भाई ये चैरिटी से है सामान चल रहा हैवी बॉडी तो नहीं है, आपसे तो कम ही है, पर कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत बन जाए। तो बस ये तो आपको ज़्यादा पता होगा। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया जी भाई? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, मेरे कोच ने मस्ती में एक सवाल किया है कि ये जेनेटिक है या सामान का असर है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी यूज़ करना ही पड़ता है। प्रोटीन पीना भी जरूरी है और सही एक्सरसाइज करना भी जरूरी है और हमारे कोचों के साथ मस्ती करना भी जरूरी है। जब तक हम हंसेंगे बोलेंगे नहीं, सही डाइट नहीं लेंगे, सही प्रोटीन नहीं लेंगे, तो बॉडी बनाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, अपने ट्राइसेप्स की ओर। पहला एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं पुल्ली पुश डाउन। लोग इसे सीधे रोड से परफॉर्म करते हैं, पर मुझे ये वी शेप के रोड से करना पसंद है, जिससे मुझे लगता है मेरे पूरे मसल्स में सही असर हो रहा है और मुझे फील बेटर आता है। मेरा मसल कनेक्शन बहुत ही सॉलिड होता है इससे। तो स्टार्ट के रैप मैच में लगभग 20 के आसपास रेपिटेशन मारता हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्राइसेप्स का पहला एक्सरसाइज है। तो मैं वेट को लाइट करके रेपिटेशन ज़्यादा करता हूँ ताकि मेरे मसल्स अच्छी तरह पहले मिल जाए। ये मेरा पहला रेपिटेशन था जो वार्म के लिए था। उसके बाद मैं फिर से वही करूँगा, वेट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगा और मैं 15-12 पूरा करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेपिटेशन सही से कर सकूँ। सेकेंड राउंड की तरफ चलते हैं, इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं अपने परफॉर्मेंस को ही बेटर रखूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रही है मैं ज़्यादा वेट नहीं मारता, मैं मीडियम वेट से ही काम करता हूँ। रेपिटेशन लगभग 17 मारे हैं। रेपिटेशन हो चुके हैं और मैं लास्ट राउंड की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट राउंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप प्लीज मुझे गाइड करते रहिए कि मैं एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज ऐड करूं या कौन से एक्सरसाइज को अवॉइड करूं। प्लीज़ आप मुझे जरूर बताएं, मैंने आपको ही अपना गुरु और कोच माना है।
तो प्लीज़ आप मुझे जरूर गाइड करें। अब हम फर्स्ट राउंड की तरफ से सारी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। अब हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे कोच साहब हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कोच साहब है ना, थोड़े शर्मीले हैं। योगा रिवर्स कर। ये भाई जब भी मेरी एनर्जी खत्म होने वाली होती है तभी ये भाई आके मुझे उंगली करने लग जाता है और मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये भाई गलती सोचेंगे यार, फ्री बर्गर भी क्या है यार। घर से तो घर से आए तो बाहर कहाँ मिला। आपने घर का नाम लिया है। सीधे खड़े होके मार सकते हैं आप, इसे हल्का बैंड होके मार सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परफॉर्म करते हुए सही जगह पे महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको जैसे महसूस हो मसल्स करेक्शन करें, आप प्लीज वैसे ही कीजिए। जरूरत नहीं होती है। शुरुआत में आपको बस ये देखना होता है कि जिस पार्ट का मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो पार्ट का मसल्स कनेक्शन आपके माइंड के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो जब आपका मसल और माइंड का कनेक्शन हो जाए उसका मतलब है कि आप सही परफॉर्म कर रहे हो। सॉरी दोस्तों, जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरे मुंह से नेचुरली साउंड आने लगती है। अब पता नहीं मुझे ये लोगों को ये अच्छा लगता हो या गलत लगता हो, बट मुझे कोई मैटर नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। चलिए दोस्तों, आज के हमारी ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम एब्स की ओर जा रहे हैं। इसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट ट्रेडमिल पे चलना है। उसके बाद आके एब्स की एक्सरसाइज का परफॉर्म करना है। तो चलते हैं हम ट्रेडमिल की ओर। तो दोस्तों, आज की एक्सरसाइज मेरी यही ख़त्म होती है। मैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और अपने साइड एब्स की एक्सरसाइज कर चुका हूँ। लगभग मेरे को ये एक्सरसाइज करने में पौने 2 से 2 घंटे लगते हैं। उसका कारण है, मैं सबसे पहले जिम में आता हूँ, 10 से 15 मिनट अपने बॉडी के सारे पार्ट को स्ट्रेच करता हूँ ताकि मेरे मसल्स लूज हो, मुझे एक्सरसाइज करते समय इंजरी फील ना हो। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर मैं बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज 4-4 रेपिटेशन के 15, 12, 10, 8 के हिसाब से 5 एक्सरसाइज मैं बाइसेप्स की करता हूँ। वैसे 4 एक्सरसाइज इनफ होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बाइसेप्स की एक्सरसाइज, इसलिए मैं 5 एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद 4 एक्सरसाइज मैं ट्राइसेप्स की करता हूँ। ट्राइसेप्स की भी 4 एक्सरसाइज की 4-4 रेपिटेशन मारता हूँ। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने में लगभग मुझे 40 मिनट लग जाते हैं। फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करने में मुझे लगभग
38 मिनट लगता है, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करने में ही मुझे 1.25 घंटा के नियर अबाउट लग जाता है। तो 1.25 घंटा ये हो गए और 15 मिनट स्ट्रेचिंग के हो गए, 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट ट्रेडमिल पे चलता हूँ, रनिंग नहीं करता बट फास्ट वॉकिंग करता हूँ। उसके बाद मैं आके चाहे वो एब्स के हो चाहे वो फ्रंट के एक्सरसाइज हो, मैं 2 से 3 एक्सरसाइज 4-4 रेपिटेशन की करता हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता। बस ये है कि रोज़ करता हूँ एब्स की एक्सरसाइज, चाहे वो साइड की हो चाहे फ्रंट की हो, चाहे अपर की हो चाहे लोअर की हो चाहे बेली फैट की हो। तो बस आज की मेरी ब्लॉग यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए, मेरी एक्सरसाइज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपका सहयोग मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए बहुत ही मायने रखता है और मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स और बेल आइकन को दबाना बहुत 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 मायने रखता है। दोस्तों, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, आपका छोटा भाई समझ लीजिए या छोटा बच्चा समझ लीजिए। बस मैंने अपनी लाइफ की एक शुरुआत करने की कोशिश की है और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि कुछ ऐसा मैं करूं जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करे और मेरी लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग बनाए। तो आप लोगों से बात करना मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं कुछ अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कुछ करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना सहयोग बनाए रखें। कल मैं फिर आपको जिम का वर्कआउट दिखाऊंगा और मैं उसमें दिखाऊंगा आपको अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कि मैं शोल्डर की एक्सरसाइज क्या करता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा राम राम, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।